Dear students, welcome to Math of Class 4, Chapter 13, Fields and Fences. This is the part 6 of this chapter. This is the last part of this chapter. So here I am going to explain some notebook exercise from this chapter. Let's start it, okay? Chapter 13, Fields and Fences. Our first question is find the perimeter of the rectangle with. Example A, length is equal to 18 centimeter, breadth is equal to 10 centimeter. So students, what has to find here? Here you have to find the perimeter of rectangle, right? So यहाँ पे हमें rectangle का perimeter find करना है, इसलिए हमें length दिया है 18 centimeter और breadth दिया है 10 centimeter. Breadth we can say the width also, right? So what is length? Length आपको पता है कि how long is a rectangle. Rectangle की long कितना है, कितनी लंबाई है, वो length बताता है, right? So see, I have drawn here rectangle. So this side shows the length, okay? So length कितना दिया है 18 centimeter. So I have written here 18 centimeter. And breadth कितना दिया है 10 centimeter. Breadth यानी मैंने बोला width, okay? Another word is similar word is width. And another way we can say the thickness, यानी rectangle की thickness कितनी है 10 centimeter. So that I will write on this side. समझ में आ गया? यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, this shows the length. तो length की साइड का मेजरमेंट है 18 centimeter, तो वो लिखा है. Then width यानी breadth कितना है 10 centimeter. So that I am writing on this side. Okay. So students, here we have to find the perimeter. So finding the perimeter we need the all side measurement. आपको पता है ना perimeter means what? The sum of all the side, यानी हर एक साइड का टोटल करेंगे उसे कहते हैं perimeter. But here only two sides are given. So what about this and this side? अब बाकी की दो sides का क्या measurement आएगा? So students क्या करेंगे, आपको पता है rectangles ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है. यानी यहाँ पे 18 सेंटीमीटर है, सो दिस साइड इज ऑल्सो 18 सेंटीमीटर. ओके, एंड सेम वे हियर ऑपोजिट साइड, सो दिस ऑल्सो विल कम 10 सेंटीमीटर. ओके, समझ में आ गया? नाउ वी गॉट ऑल द फोर साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. अब हमें चारों चार साइड मिल गया रेक्टेंगल का. सो नाउ वी कैन फाइंड द पेरीमीटर. अब हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं. सो हमें क्या लिखना है स्टूडेंट्स हियर, perimeter. Okay, so what is the spelling of perimeter? Perimeter. Okay, so perimeter फाइंड करने के हमें चारों चार साइड का टोटल करना पड़ेगा. सो हम पहले लिखेंगे 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर. ओके, हम चारों चार साइड का एडिशन करेंगे. सो 18 प्लस 18 कितना होगा, 18 टू 36, 10 46 एंड 56. अगर आपको डायरेक्टली नहीं आता है आप अरेंज करके कर सकते हो. ओके, सो द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 56 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड? द अनदर वे ऑल्सो वी कैन फाइंड द पेरीमीटर विद द फॉर्मूला. हाउ? सी, टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अगर हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, राइट, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई L प्लस B करेंगे. यानी 2 को लेंथ और ब्रीथ का एडिशन करना है मल्टीप्लाई करके. यानी 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितना है 18 प्लस ब्रीथ कितना है 10, तो B की जगह पे मैं क्या लिखूँगी 10. सो 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 10 28. सो 2 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल टू कितना होगा 56 सेंटीमीटर. समझ में आ गया स्टूडेंट्स? So this way also you can find the perimeter of rectangle also. If you don't understand, it's okay, but this is the formula to find the perimeter of rectangle, 2 multiply L plus B. Okay, the otherwise you can do directly also, do the additions of all the sides of rectangle and you get the answer very easily. Okay, so now we go to the next question, student. So our next question is breadth is equal to 35 centimeter and length is equal to 43 centimeter. See, I have drawn the rectangle here so you can understand more properly. So यहाँ पे पहले दिया है breadth. breadth यानी क्या, thickness, width. तो कहाँ पे लिखेंगे 35 सेंटीमीटर. दिस इज कॉल्ड breadth. तो हमें यहाँ पे लिखेंगे 35 सेंटीमीटर. एंड लेंथ, तो हम यहाँ पे दिस इज ऑल्सो द लेंथ, सो दैट वी राइट हियर 43 सेंटीमीटर. Okay, only 2 measurements are given, but for finding the perimeter we need all 4 measurement. हमें हर एक साइड का मेजरमेंट चाहिए, here also and here also. Okay, so as you know that rectangle opposite sides are equal. अगर यहाँ 35 है, so this side will be also 35 centimeter
and here 43 centimeter, the opposite side also will be 43 centimeter. Okay, got all the four sides measurements. So now we find the perimeter. So again you have to write here perimeter is equal to 43 centimeter plus 35 centimeter plus 43 centimeter प्लस 35 सेंटीमीटर. ओके, ये आपको ऐसे लिखना है. नाउ यू हैव टू डू द एडिशंस ऑफ ऑल फोर दिस नंबर. अगर आप इनका एडिशन करोगे तो क्या आंसर आएगी 156 सेंटीमीटर. आपको यहाँ पे साइड पे रफली एडिशंस करना है. सी आई एम डूइंग हियर 43, 35, 43 एंड 35. ओके, सो 5 + 5 10, 16, 1 कैरी ओवर, 7, 8, 12 एंड plus 3 15 आ गया. सो 156 सेंटीमीटर द perimeter of this rectangle. Okay students, if you will draw the figure it will be more clear for you. Okay students, now let's see the next question. Our next question is that find the perimeter of square whose length of one side is given below. अब यहाँ पे हमें किसका perimeter find करना है, स्क्वायर का. ओके, तो स्क्वायर के पेरीमीटर के लिए हमें एक लेंथ दिया है वन साइड का 12 सेंटीमीटर. सी आई विल ड्रॉन द स्क्वायर हियर ऑल्सो एंड द लेंथ ऑफ वन साइड इज 12 सेंटीमीटर. यानी एक साइड का लेंथ क्या दिया है 12 सेंटीमीटर. बट हमें पेरीमीटर फाइंड करना है स्टूडेंट्स. तो पेरीमीटर के लिए स्क्वायर की कितनी साइड होती है 1, 2, 3 एंड 4 साइड. स्क्वायर की 4 साइड होती है ना. सो व्हाट अबाउट द अदर साइड, बाकी सब साइड का क्या मेजरमेंट होगा. सो स्टूडेंट्स, स्क्वायर हैज़ इक्वल साइड. स्क्वायर की हर एक साइड कैसी होती है, इक्वल. सो दिस इज 12 सेंटीमीटर. सो दिस ऑल्सो विल बी 12, this also will be 12 and this also will be 12. So now we got all the sides of this square. Okay, now can we find the perimeter. अब हम perimeter find कर सकते हैं. आपको यहाँ पे लिखना है perimeter is equal to 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर. ओके, 4 टाइम्स 12 सेंटीमीटर का एडिशन करना है. तो क्या होगा 48 सेंटीमीटर. समझ में आ गया. और अगर ऐसा नहीं करना हो तो आप क्या कर सकते हो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है उसका मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला इज इक्वल टू 4 × ए. ओके, ए मीन्स साइड. ए क्या है, साइड है. सो 4 × 12 सेंटीमीटर करोगे आपको आंसर मिलेगा 48 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. तो दिस वे ऑल्सो यू कैन फाइंड द आंसर. अगर नहीं समझ में आना, यू डू द एडिशंस ऑफ ऑल द 4 साइड्स एंड देन ऑल्सो यू विल गेट द आंसर्स. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ वी सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. That is our next question is 30 सेंटीमीटर. ओके, ओनली वन साइड इज गिवन. सो अदर साइड क्या होगी, अभी मैंने आपको समझाया ना, स्क्वायर की हर एक साइड इक्वल होती है. तो दिस ऑल्सो विल बी 30 सेंटीमीटर, दिस ऑल्सो विल बी 30 सेंटीमीटर एंड दिस ऑल्सो विल बी 30 सेंटीमीटर. सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स पेरीमीटर फाइंड करने के लिए. सो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे 4 × 30 सेंटीमीटर. सो इट्स ईजी फॉर काउंटिंग ऑल्सो. सो 4 3 are 12, एक ज़ीरो लगा देंगे. सो 120 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. तो अगर ये समझ में नहीं आता, यू डू द एडिशंस ऑफ ऑल द 4 साइड्स ऑल्सो यू विल गेट द सेम आंसर्स. ओके, स्क्वायर में आप 4 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे साइड्स का तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगी. ओके, अदरवाइज आपको नहीं, यू कैन डू द एडिशंस ऑफ द 4 साइड्स. Understood students, how to find the perimeter of rectangle and square. Let's see the next question. So our next question is find the missing length. हमें यहाँ पे एक लेंथ मिसिंग है, देखो यहाँ पे वो फाइंड करनी है. सी स्टूडेंट्स, हियर द फिगर, this side measurement is given, only this side measurement is missing. So how can you find the missing length? हमें यहाँ पे क्या दिया है, पेरीमीटर दे दिया है. यानी ये फिगर का जो पेरीमीटर 26 सेंटीमीटर है that is given, पर हमें यहाँ पे एक साइड का लेंथ नहीं दिया है. तो हाउ कैन वी फाइंड, कैसे फाइंड करेंगे. तो स्टूडेंट्स सी हियर, तो हम जब पेरीमीटर फाइंड करें तो व्हाट वी राइट हियर, पेरीमीटर इज इक्वल टू ऑल द साइड्स. तो हम क्या लिखेंगे 4 + 9 + 10 प्लस दिस साइड इज मिसिंग, राइट. सो यहाँ पे क्या दिया है, पेरीमीटर 26 इज इक्वल टू, वी डू द एडिशन ऑफ दिस नंबर 10 + 9 19 + 23. ओके, प्लस मिसिंग, दैट मीन्स वी कंसिडर एज अ x.
x मीन्स मिसिंग लेंथ, राइट। नाउ क्या करेंगे, 26 में से यानी टोटल पेरीमीटर में से ये 3 साइड्स का टोटल माइनस कर देंगे, यानी 23 माइनस कर देंगे तो हमें x यानी मिसिंग लेंथ मिल जाएगी। दिस मिसिंग लेंथ मीन्स x, राइट। हमें ये मिसिंग लेंथ मिल जाएगा। सो 26 माइनस 3 करेंगे तो क्या आंसर आएगी, 3 आंसर विल कम। 26 में से 3 जाएगा तो क्या आंसर आएगा, 3 इज इक्वल टू x, यानी दिस मिसिंग लेंथ इज 3 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, समझ में आया कैसे करना है। तो आपको ये ब्लैंक पे क्या लिखना है, टोटल पेरीमीटर कितना है 26, उसमें से ये 3 साइड्स का टोटल मैंने क्या बताया आपको 23, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 26 में से 23 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा मिसिंग लेंथ 3 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, आपको ये सब नहीं करना हो दैट इज़ ओके, बट आई एक्सप्लेन यू हाउ वी कैन फाइंड द मिसिंग लेंथ। यानी हमें यहाँ पे पेरीमीटर दे दिया, यानी पूरे फिगर का मेजरमेंट दिया है और एक लेंथ मिसिंग है, सो टोटल में से जो अवेलेबल लेंथ है वो माइनस कर दो, वी गेट द मिसिंग लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, हाउ टू फाइंड इट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सी here also this side 3 centimeter, this side 5 centimeter, this side 2 centimeter, but this side is missing, यानी ये साइड का मेजरमेंट हमारे पास नहीं है। ओके, और पेरीमीटर क्या दिया है 15 सेंटीमीटर, यानी ये पूरे जो फिगर है उसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो आपको इजी वे से क्या करना है, पेरीमीटर कितना है 15, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे 15 माइनस, क्या माइनस करोगे, आपके पास ये जो 3 साइड्स है ना उसका टोटल कर दो, 2 + 3 5 एंड 5 + 5 10। सो 15 में से आप 10 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगी 5। दैट मीन्स द लेंथ ऑफ दिस मिसिंग प्लेस इज़ 5 सेंटीमीटर, यानी जो मिसिंग लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। अंडरस्टूड स्टूडेंट, दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू फाइंड इट। क्या करना है, टोटल पेरीमीटर में से जो लेंथ दिया है उसका एडिशन करके माइनस करो, यानी 15 है, टोटल लेंथ कितना है यहाँ पे 15, उसमें से कितना लेंथ है हमारे पास 2 + 3 5 5 + 5 10, यानी वो 10 माइनस करोगे तो जो रिमेनिंग आंसर होगा दैट इज़ द लेंथ ऑफ दैट मिसिंग प्लेस। ओके, सो दैट इज़ अ 5 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, हाउ टू फाइंड द मिसिंग लेंथ। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं, नंबर स्टोरीज, उस पे से आपको फाइंड करना है। लेट्स अंडरस्टैंड एंड रीड इट। A hockey field is 91 meter 40 centimeter long and 55 meter wide. How long is the boundary of the field? तो आपको पता चल गया क्या फाइंड करना है, क्या लिखा है, How long is the boundary of the field? In a boundary. Boundary means what? Here perimeter. That means in this example you have to find the perimeter of the field. यानी ये जो फील्ड है उसकी बाउंड्री फाइंड करनी है, यानी पेरीमीटर फाइंड करना है। क्लियर, पहले समझ में वो आ गया। नाउ सी द मेजरमेंट। 91 मीटर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी लेंथ दिया है, तो दिस इज द लेंथ साइड, आई विल राइट हियर 91 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर, राइट, एंड 55 मीटर वाइड मीन्स विथ दिया है, ब्रेथ दिया है, राइट। तो हम यहाँ पे वाइड में लिखेंगे 55 meter. Here all the measurement is given meter and centimeter. This also in meter, right? तो यहाँ पे लिख दिया। अब हमें इसका पेरीमीटर बाउंड्री फाइंड करना है, सो वी नीड दिस अदर 2 साइड्स। बाउंड्री के लिए हमें हर एक साइड का मेजरमेंट चाहिए ना, तो सेम वे इसका ऑपोजिट इक्वल होगा। सो दिस ऑल्सो विल बी 91 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर एंड दिस 55, सो दिस ऑल्सो विल बी 55 मीटर। ओके, क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं, बिकॉज रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, दिस ऑल्सो इक्वल एंड दिस ऑल्सो इक्वल, इसलिए हम मेजरमेंट उनका क्या होगा, सेम होगा। ओके, नाउ वी फाइंड द पेरीमीटर। अब हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू, हमें क्या करेंगे, चारों का एडिशन करेंगे, पर सी हियर मेजरमेंट इज इन मीटर एंड सेंटीमीटर, तो हम पहले उसका कॉलम बना लेंगे, मीटर और सेंटीमीटर का कॉलम से हम एडिशन करेंगे। सो 91 क्या है, मीटर है, एंड 40 क्या है, सेंटीमीटर, सो आई विल राइट ऑन सेंटीमीटर कॉलम, प्लस 55 इज मीटर, सो आई विल राइट ऑन मीटर साइड, एंड नो नंबर इन सेंटीमीटर, सो आई पुट zeros, देन अगेन 91 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर प्लस 55 मीटर, okay, no number on centimeter place.
हो गया एडिशंस? ऐसे अरेंज करके कर सकते हो, अदरवाइज आप हॉरिजॉन्टली लिख के भी कर सकते हो, पर आपको एडिशन कैसे करना है, इसलिए आई हैव रिटन हियर वर्टिकली. ओके, नाउ डू द एडिशन. स्टार्ट फ्रॉम द वंस प्लेस. हियर ऑल द zeros will come 0 only. 4 plus 4 8, then 5 plus 1 6 and 7, 7 plus 5 12, 2 1 carry over, 9 plus 1 10, then 5 15, 9 24 and 5 29. So what is the total here? 292 meter and 80 centimeter. क्या perimeter हुआ? 292 meter and 80 centimeter. But students, here we have to write the statement also. So what is the question? How long is the boundary of the field? यानी ये जो हॉकी की फील्ड है उसकी बाउंड्री कितनी होगी? तो हमें मिल गया. So हमें आंसर यहाँ पे लिखना है लास्ट में. I don't have a space, so I am writing here. So the boundary of the field is, you can write a hockey field also, field is 292 meter, right, and 80 centimeter. समझ में आया? 292 meter and 80 centimeter. Okay, this has to write as a statement. लास्ट में लिखना है आपको. समझ में आ गया? Okay, now let's see the next one. The next example is number story. Raju jogs around a rectangular garden whose length is 25 meter and breadth is 20 meter. Find the total distance covered by him if he jogs around the garden thrice. ओके, तो क्या कह रहा है ये सब में? राजू क्या करता है? ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन, देखो मैंने यहाँ पे बनाया है रेक्टेंगुलर गार्डन. ओके, यानी रेक्टेंगुलर शेप लेना है. उसके अराउंड यानी उसके आजू बाजू वो जॉगिंग करता है, जिसका लेंथ कितना है? लेंथ इज़ 25 मीटर. दैट मीन्स दिस साइड लेंथ इज़ 25 मीटर एंड द ब्रेथ कितना है? 20 मीटर. सो ब्रेथ मीन्स थिकनेस कितनी है? 20 मीटर. व्हाट इज अनदर वर्ड फॉर ब्रेथ? विथ. ओके, सो नाउ रिटन फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम. यानी अगर वो जॉगिंग करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सेम वे हमें लेंथ और ब्रेथ दिया है, सो वी कैन फाइंड द अदर लेंथ ऑल्सो फॉर फाइंडिंग पेरीमीटर. अराउंड यानी ये यहाँ पे वर्ड दिया अराउंड, यानी आजू बाजू रन कर रहा है, राइट. हमें पेरीमीटर फाइंड करना होगा, उसके अराउंड बाउंड्री के वो जॉग कर रहा है, इसलिए हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर. सो दिस विल बी 25, सो दिस ऑल्सो विल बी 25 and this 20, so this side also will be 20 meter. Now we get the distance of all the sides. Now we find the perimeter. Okay students, तो हम यहाँ पे लिखेंगे perimeter is equal to, क्या लिखेंगे? 25 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 25 मीटर प्लस 20 मीटर. अब इन चारों का एडिशन कर लेंगे. सो कितना होगा? 25 प्लस 25 50, 70 एंड 90 मीटर. ओके, अगर वो रेक्टेंगुलर गार्डन के अराउंड 1 टाइम रनिंग करता है, जॉगिंग करता है, सो ही कवर्स 90 मीटर डिस्टेंस. ओके, पर व्हाट इज अवर क्वेश्चंस? फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इफ ही जॉग्स अराउंड द गार्डन थ्राइस. वो जॉगिंग कितनी बार करता है अराउंड द गार्डन? थ्राइस. थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स. कितनी बार जॉग करता है? 3 टाइम्स. दैट मीन्स द डिस्टेंस विच वी गेट इट हियर दैट इज़ 1 टाइम. अगर वो 1 टाइम जॉगिंग करेगा अराउंड द गार्डन, ही कवर्स 90 मीटर डिस्टेंस. सो हियर वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फॉर थ्राइस, यानी 3 टाइम्स फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 3 करेंगे. क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 3. सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? राजू covers distance is equal to 90 meter multiply 3. So 9 3s are 27 and 0 270 meter. ओके, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सो 270 मीटर. सबको समझ में आया? यहाँ पे हमें थ्राइस दिया है तो मल्टीप्लाई 3 करना है, अगर ट्वाइस दिया हो तो मल्टीप्लाई 2 करना है. ओके, सो दिस 90 मीटर इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 राउंड ओनली. यानी वो एक बार वो राउंड लेता है तो 90 मीटर कवर करता है. अगर वो 3 बार राउंड लेगा तो 270 मीटर डिस्टेंस कवर होगा. क्लियर स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड? सो डू प्रैक्टिस, सो यू विल गेट इट मोर क्लियर. Next example. This is the last example of this chapter.
Vijay takes 2 rounds along the boundary of a square field with each side equal to 100 meter. What distance does he cover? So students क्या हो रहा है? See, this is विजय टेक्स 2 राउंड. वो कितने राउंड ले रहा है? 2 राउंड ले रहा है, राइट. अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड, यानी उसका फील्ड कौन सा है? स्क्वायर है. सी आई हैव ड्रॉन द स्क्वायर फील्ड. और हर ईच साइड इज इक्वल टू 100 मीटर, यानी एक साइड का मेजरमेंट क्या है? 100 मीटर. ईच साइड यानी हर एक साइड का 100 मीटर है. स्क्वायर है मीन्स हर एक साइड इक्वल होगी. सो दिस ऑल्सो विल बी 100 मीटर, दिस ऑल्सो विल बी 100 मीटर एंड दिस ऑल्सो विल बी 100 मीटर. सो मिल गया हमें. सो व्हाट डिस्टेंस डज ही कवर? तो यहाँ पे भी हमें पैरीमीटर ही फाइंड करना है. यहाँ पे वर्ड दिया है अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, यानी हमें बाउंड्री का डिस्टेंस दिया है. दैट मीन्स हियर वी हैव टू फाइंड द पैरीमीटर. और हमें चारों साइड का डिस्टेंस मिल गया है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? पैरीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर मल्टीप्लाई डायरेक्ट 4 कर दें. ओके अगर आपको नहीं करना हो तो 100 मीटर प्लस 100 मीटर प्लस 100 मीटर प्लस 100 मीटर भी कर सकते हो. सो दैट मीन्स 100 4s are 400 मीटर. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो नाउ सो व्हाट डिस्टेंस डज ही कवर? पर हमें यहाँ पे बोला है कि विजय टेक्स 2 राउंड. अगर वो 2 राउंड ले रहा है बाउंड्री के, और ये जो डिस्टेंस आया है वो 1 राउंड. अगर वो 1 राउंड कंप्लीट करेगा तो 400 मीटर होगा. पर अगर 2 राउंड के लिए क्या होगा? तो हमें लास्ट में क्या लिखना है? विजय covers distance is equal to 400 मीटर फॉर 1 राउंड. 2 राउंड के लिए चाहे तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2 करेंगे, राइट. सो 400 2s are 800 मीटर. यानी विजय कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 800 मीटर. इफ़ ही टेक 2 राउंड्स, अगर वो 2 राउंड लेगा सो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 800 मीटर. Understood students how to do it? I hope you have understood all this exercise. If you have any doubt regarding it, you can ask in comment box. Students, you have to complete your classwork notebook on regular basis with good and neat handwriting. Okay? Thank you.